ये जी स्टार्ट कर। ठीक है। Okay, madam. Madam, I am Dr. Fatma, one of the exam candidate. I read the scenario. I am ready for structural discussion. First of all, I examine I fulfill the WHO checklist, fulfill, and I put the position in patient in lithotomy position and clean and drape the patient, empty her bladder, and after this I perform the pelvic examination to see the laxity of the vagina and size, assess the size and position of the uterus, and perform by manual examination to see any adnexal pathology present. And after this, I assess the associated symptom, either is the rectocele and the cystocele present. After this, after this. After aseptic measure, I retract the anterior posterior vaginal wall and hold the anterior and posterior lip of the cervix by wall salum, and I infiltrate with xylocaine 1 ratio into the 10,000 100,000 with adrenaline and make us after this I reassess the lower margin of the bladder by passing the by passing sound 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 to read the assess the lower margin of the bladder. After this, I perform the circumferential incision 1 centimeter below the utrovesical angle. After this, I push the bladder anteriorly upward and upward to expose the utrovesical peritoneum, and posteriorly expose the rectum and rectum expose, and posteriorly open the posterior peritoneum. And after this, I feel the anterior to ensure that there is no mass and no adhesion present. After this, I apply the first clamp, transfer uterosector and cardiac ligament, but make sure that bladder is high up, because I first of all I expose the high up of the bladder. I make sure, because in this clamp ureter near to it, after confirming that the ureter is uterosector peritoneum high up. After this, I will perform the uterosector and cardiac ligament first clamp cut and transfix this. I apply this clamp both side. After this, I apply the uterine artery clamp and clamp cut and ligate, but this clamp I does not transfix this. After this, I perform the third clamp. In this clamp, if ovary is preserved, and so that if no any indication of ovary removal, no history of patient, no history of ovarian carcinoma, no any pathology on scan, and so that I perform the clamp on the utro-ovarian ligament and round ligament. I clamp this. I clamp, cut, and ligate it. After this, remove the uterus and hold hand over to the scrub nurse for proper labeling and sent to the for histopathology. After this, I perform cystocele repair, and after cystocele repair, and I clamp. I hold cuff. Madam, after this, I transfix ligament and uterosacral ligament, cardiac ligament, and with above first ligament. After this, both ligament. After this, stitch is transfixed with the both angles. After this, I stitch the vault. Make sure that
no active bleeding in that time. After this, I pass for leads, empty the bladder, and after this, if any bleeding present, I pack the vagina for at least 24 hours. After this, I document the whole procedure with date and time, and shift to the patient to the recovery room for strict vital monitoring and urine output monitor for and vital monitoring and give antibiotics, analgesia, and VTD assessment done. And send the sample for histopathology and early, make sure the early mobilization of the patient and early mobilization of patient, and next after 24 hours remove the pack, and because I perform the cystocyst repair, so I remove the folies after 48 hours. After removing our folies, I make sure that the patient passes urine, and I check the residual volume by passing the by the sound. You can by in and out catheter, and after this I discharge patient with the tell the red flag signs, and I tell the patient predisposing factor for not if any cough and constipation and constant constipation and no heavy lifting, so that to protect the vault descent. After this, I call for follow up after 1 week with histopathology report. Thank you. Anything you want to add, Fatima? मैडम दोबारा देखने दें। हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट फॉलो करूंगी और उसको प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बताऊंगी कि उसको वो करे, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो थे अवॉइड करे ताकि थोड़ा सा एंटीरियर रिपेयर को इलेबोरेट करें बेटे, एंटीरियर रिपेयर की सर्जिकल टेक्निक को इलेबोरेट करें। Okay, madam. First of all, I give the incision of the midline of the on the utrovesical, make a vertical incision on the utrovesical peritoneum, and after this, I take a incision on the पाउच फॉर्म, मेरे वो जो गोल गोल इncision हम स्टिच लेते हैं, एक नाम होता है, क्या नाम होता है उसका? वो तो वो मैडम उसको जैसे बैग की तरह पैक कर, उसी नाम होता है, सिस्टोसील को, वो सिस्टोसील को मतलब वो मूव इनसाइड करने के लिए। आफ्टर दिस आई इफ स्ट्रेस incontinence present, then I take the Kelly stitch on the utrovesical angle. After this, I repair the peritoneum. Is either the continuous suture and continuous suture and interrupted suture. Kelly stitch सबको लगाते हैं? नो मैडम, अगर उसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की हिस्ट्री हो तब लगाते हैं। अच्छा जी, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की हिस्ट्री हो। और एंटीरियर रिपेयर में कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? मैडम बताना नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने इसका कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है उसमें ये होता है इंसिजन देके ना उसमें पेरिटोनियम को रिमूव करते हैं मैडम। उसके बाद जो यानी कि वो प्रोलैप्स होता है उसको ना एक गोल इंसिजन स्टिच राउंड स्टिच लेते हैं, उसके बाद उसको इनकेस वो जो सिस्टोसील होते हैं उसको इनसाइड मूव करते हैं, और उसके बाद उसको इंटरप्टिव सुचर में क्लोज कर देते हैं। पहले इंटरप्टिव और उसके बाद कंटिन्यूस करते हैं ना, जो एक्सरसाइज करते हैं वो पेरिटोनियम नहीं होती, ठीक है, वो वेजाइनल एपिथेलियम होती है, वेजाइनल मिकोजा एपिथेलियम उसको कहते हैं, ठीक है। वेजाइनल स्किन भी है तो फिर भी बात है, ठीक है। जी, जो हम रिमूव करते हैं वो एंटीरियर वेजाइनल वॉल के ऊपर म्यूकोजल लेयर होती है ना, एपिथेलियल लेयर होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरी मुझे आपने याद दिलाना है आफ्टर दिस सेशन के टील इंडेक्स जो सर्जरी बुक है ना, उसके जो ये इसके 2-3 सफ़े हैं वीएच के भी और इसके भी, तो वो प्लीज आज पढ़ लेने हैं आपने, एक दफा से रीड कर लो उसको, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैडम जरूर आपने इतना समझा दूं कि आप लोगों को एक दफा पढ़ो तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। वीएच में ना सबसे पहले उसने क्या कहा कि आप आए, आपने इंट्रोड्यूस किया, सारा कुछ ठीक था। वेजाइनल हिस्टेक्टोमी के स्टेप्स आपने कैसे करने हैं, सबसे पहले बहुत अच्छा आपने किया कि आई विल मेक श्योर, सबसे पहले मैं उसका बायोमेडिकल एग्जामिनेशन करूंगी, ब्लैडर को एम्प्टी करूंगी, और बायोमेडिकल एग्जामिनेशन। जी जी, नहीं आ रही सिद्रा, आपको भी नहीं आ रही मेरी वॉइस?
क्लियर है या नहीं क्लियर है? मैडम अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी, चलो ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले यू मैडम आर अब गोइंग, आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। जी जी ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले यू आर गोइंग टू परफॉर्म अ बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, बिकॉज दिस इज एन आइडियल अपॉर्चुनिटी, वी नीड टू कंफर्म, क्योंकि आपको फाइंडिंग्स, आपने वैसे तो ये एक असूल है अपनी जिंदगी में याद रखना कि जिस पेशेंट की सर्जरी तुमने करनी है, सर्जरी से पहले उसका एक एग्जामिनेशन अपने हाथ से किया हुआ हो, चाहे वो गायनी की सर्जरी है, चाहे वो ऑप्स की सर्जरी है, वो जो मर्जी सर्जरी है, जिस जगह की सर्जरी आपने करनी है ना, वो एग्जामिनेशन आपका एक दफा सर्जरी से पहले और एक दफा ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर होना चाहिए। समझ आ रही है? कई दफा ऐसे होता है हम मरीज के लिए सिजेरियन करते हैं, आपने जी भी शायद मैडम। एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम इंसीजन देते हैं अंदर बच्चा की फैलिक होता है, क्यों? क्योंकि जब हमने इंसीजन दिया तो उससे पहले हमने एग्जामिनेशन करके कंफर्म नहीं किया कि पेशेंट अभी भी ब्रीच है या घूम तो नहीं गया बच्चा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल परफॉर्म अ जी बायोमैनुअल एग्जामिनेशन बिकॉज टू कंफर्म द फाइंडिंग्स, क्या जो फाइंडिंग्स मुझे मिली है वो है या नहीं, इफ द यूट्रस इज मोबाइल इनफ एंड डिसेंट, टू मेक श्योर नो अनएक्सपेक्टेड पैथोलॉजी इज देयर। ठीक है, यानी वेजाइनल रूट की सारे प्री रेक्विजिट कंप्लीट है, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है। देन आई विल परफॉर्म, आई विल इंसर्ट अ सिम स्पेक्यूलम। अच्छा, यहाँ पे ब्लैडर भी एम्प्टी करना है, ठीक है, वो यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन आपने ब्लैडर को ये लाजमी याद रखना है, ठीक है। ब्लैडर एम्प्टी जी हो गया। मैडम, बहुत सही। नंबर 3, इंसर्ट अ सिम स्पेक्यूलम। नंबर 4, दो वॉल सैलम में लूंगी, इसलिए पेयर ऑफ वॉल्जेला लिखा हुआ है, दो वॉल सैलम लूंगी, ऐसे ये सर्विक्स जी है, एंटीरियर लिप को भी पकड़ लूंगी, पोस्टीरियर को भी पकड़ लूंगी और खींचूंगी बाहर, पुल करूंगी। ठीक है, डाउन टू द लेवल ऑफ जी इंट्रोइटस एंड इनफिल्ट्रेट द स्किन विद 10 to 20 ml, प्लीज अब ये याद कर लें, ऑफ 0.25 मिक्सचर परसेंट मिक्सचर ऑफ ब्यूपिकेन एंड डाइल्यूटेड एड्रेनालिन सॉल्यूशन 1 in 200,000। ठीक है, दिस विल हेल्प आइडेंटिफाइंग द जी टिश्यू प्लेन एंड लोअर द ब्लड लॉस। ये अब आपने याद रखना है कि आपने कितना हाइड्रोडाइसेक्शन के लिए सोल्यूशन डालना है अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोडाइसेक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, जी अब जी वो कह रहे मैडम। हैं कि जब आपने एम्प्टी करना है ना ब्लैडर को, तो वो जो मेटल कैथेटर से मैं करूंगी और साथ ही में जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगी तो मैं लोअर लिमिट देख लूंगी कि ये ब्लैडर की लोअर लिमिट है। सर्विक्स के ऊपर, ये जो सर्विक्स मैंने खींची है बाहर, ये देखो यहाँ पे वाल्जेलम लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये मैंने सर्विक्स खींची है, अब मैंने इधर मिएटस से डाला अंदर मेटल कैथेटर, और मैंने देखा कि ये लोअर लिमिट है ब्लैडर की, यहाँ तक आ रहा है कैथेटर, इससे नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, अब मैं जी क्या करूंगी, मैंने एंटीरियर रिपेयर करना है तो मैं सरकमफेरेंशियल इंसिजन नहीं दूंगी, मैं इन्वर्टेड टी अच्छा इंसिजन दूंगी या मैं टीयर ड्रॉप इंसिजन दूंगी शुरू से ही। अगर मैंने इंटीरियर रिपेयर नहीं करना होता शुरू से ही तो मैं पहले सरकमफेरेंशियल इंसिजन दे देती, जो हम यहाँ पे देते हैं ऐसे गोल गोल। ये बात समझ आ गई ठीक। है? आपका एंटीरियर जी रिपेयर का मैडम। इंसिजन यहीं से ही फर्क है। ठीक हो ठीक। गया। एट द सर्वाइको वजाइनल जंक्शन विद नाइफ या डाइथर्मी से भी लोग देते हैं। ठीक है, यहाँ जब मेरा प्लेन बन गया, मुझे पता चल गया कि ये प्लेन में आ गई हूँ, यानी कि मैं सर्विक्स के ऊपर पहुंच गई हूँ। अब मैंने यहाँ से जो वजाइनल स्किन प्लस जो ब्लैडर है, इसको मैंने रिट्रैक्ट करना है ऊपर की तरफ, और ये जो यहाँ फ्लैप मैंने खोला हुआ है ना इधर, इसको मैं बाद में डाइसेक्ट करूंगी जी जब मैं एंटीरियर रिपेयर करूंगी। ठीक है, ठीक। मैंने सिर्फ इंसियन ऐसे दे दिया टीयर ड्रॉप। एक दफा मैं इसको जरा वाइप करके ना आपको दोबारा दिखाती हूँ, एक मिनट, बल्कि आगे पिक्चर्स हैं, मैं उस पर आपको दिखाती हूँ, छोड़, बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं। अच्छा, ये एंटीरियर रिपेयर की है, ये मेटल मैं कैथेटर देख लो जरा, ये ऊपर वैसे होते ही हैं, हमने किए नहीं है वार्ड्स में, थिएटर्स में होते ही हैं ये अक्सर। ठीक है, अच्छा जी, नहीं मैं जी पी लेती हूँ। ये देखो हाइड्रोडाइसेक्शन आपने की, पहले आपने ये दो बाल सैलम लगाए, इसको आपने बाहर स्ट्रेच किया, फिर आपने हाइड्रोडाइसेक्शन की, ठीक है, प्लेन बनाया, फिर आपने इंसिजन दिया। ठीक है, ये तो सरकमफ्रेंशियल ही दे रहा है, जब इंसिजन पूरा दे दिया, अब डायसेक्शन वाला नहीं है यहाँ पे, यहीं से ही आपने गॉज से इसको पीछे धक्का देना शुरू कर देते हैं, जो ये जो वजाइनल स्किन है। ठीक है, फिर जब ये पूरी डायसेक्शन हो जाती है, फिर आप सबसे पहले खोलते हैं पोस्टीरियर पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम पीछे से आप खोलते हैं, सॉरी विसरल। ठीक है, नहीं नहीं विसरल नहीं, सॉरी पैराइटल ही है। ठीक है, या पीओडी में पहले खोलते हैं, यहां से फिर आप फिंगर डालते हैं और आगे जो यहाँ का इंसिजन है ना आपका, यहाँ पे आप फिंगर लेके आते हैं और फिर इससे डायरेक्टेड, यानी फिंगर डायरेक्टेड फ्रॉम पोस्टीरियर इंसिजन टू द एंटीरियर यूट्रोवेजाइकल पाउच में आ जाएगी जब, तो ये आपको गाइड करेगी आपने इंटीरियर पाउच कैसे खोलनी है। ठीक है, उसके बाद जब पाउचेस दोनों खुल जाएंगी तो फिर आपने क्लैंप्स लगाने। ये बात समझ आ गई है? यस मैडम। अब समझ आ गया? जब मैं ये जी करूंगी, जी मैडम। हाँ जी, तो उसके बाद फिर मैंने ये करना है कि
अच्छा, इसने एंटीरियर पाउच बाद में खोली है, हम वैसे साथ ही खोल लेते हैं। हर किसी की अपनी टेक्निक है, आप जिसमें जो आपको याद आता है, अगर वो कहे ना ऐसे नहीं ऐसे, तो कहना हमने ऐसे ही सीखा। जी मैडम, पहले पोस्टीरियर खोल के फिर ऊपर की तरफ आते हैं जी जी, फटने फिर से। एंटीरियर पाउच हम खोल लेते हैं। लेकिन ये बुक कह रही है टील इंडे के, पहले आप ये करें, ये टील इंडे से मैंने लिया हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि आप ना वो जी करें, पहले आप पिछला क्लैंप लगा लें। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से हम देखते हैं, हमने टीयर ड्रॉप इन सीएन दे दिया। रिफ्लेक्ट सुपीरियरली द एंटीरियर वजाइनल स्किन एंड सर्वाइको वजाइकल फेशिया शार्प या ब्लंट डाइसेक्शन आप कर सकते हैं विद अ गॉज। ठीक है। ये हमने एंटीरियरली सारा ब्लैडर जो है उसको डाइसेक्ट कर लिया, सेपरेट कर लिया सर्विक्स के ऊपर से। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जब ब्लैडर मोबिलाइज हो गया तो उसको हमने लैंडन रिट्रैक्टर से पकड़ना है। लैंडन की पिक्चर में आगे दिखाती हूँ, आइडियली यही यूज होता है। ठीक है। अच्छा जी, अगर नहीं है तो आप सिम स्पेकुलम डाल सकते हैं। देन हम लिफ्ट करेंगे सर्विक्स को अप, मोबाइल करेंगे पोस्टीरियर वजाइनल स्किन को सुपीरियरली, और एक्सेस करेंगे पीओडी को इन द मिड लाइन बिटवीन द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, कहना है। वी विल ग्रेस्प द पेरिटोनियम with a non-traumatic tissue forceps and open with a blunt scissor एंड रिप्लेस द स्पेकुलम, जो हमने पहले वेजाइनल वॉल में रखा हुआ था, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट कर रहा था। अब उसको पीओडी के अंदर जो हमने पोस्टीरियर पाउच ओपन किया हम उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है। दिस विल अलाउ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स और कार्डिनल लिगामेंट्स। जब मैं पोस्टीरियर पाउच खोलूंगी तो मुझे लिगामेंट्स मिल जाएंगे, मैं लिगामेंट यहीं लगा सकती हूँ। अगर इस तरह कंफर्टेबल है ऐसे ठीक है, नहीं तो जो मैं जैसे करती हूँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पहले पीछे वाली खोली, आगे वाली खोली, फिर क्लैंप लगाना शुरू कर दिए। क्योंकि इस सीक्वेंस में भी जब आपने पहले पीछे वाली पाउच खोल ली है, जब आप क्लैंप लगा लेंगे तो इसके बाद फिर आपने अगली खोल के ही यूट्राइन लगेगी, उससे पहले नहीं लगेगी। ठीक है। यूट्राइन के लिए दोनों पाउचेस का खुलना जरूरी है। अच्छा जी, असिस्टेंट विल मोबिलाइज द यूट्रस टू ईच साइड। हाँ, यहाँ पे आपने कहना है कि आई विल आस्क माई असिस्टेंट टू टिल्ट द यूट्रस टू द अदर साइड सो दैट, टू द ऑपोजिट साइड, सो दैट आई कैन क्लैम्प, कट एंड लाइगेट दीज लिगामेंट्स ऑन ईच साइड। ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं इसको लॉन्ग थ्रेड के साथ मैं इसको क्लिप कर दूंगी टू द ड्रेप्स यूजिंग अ स्मॉल आर्टरी फोर्सेप्स। ठीक है। अच्छा, क्लैंप्स जो हिस्टेक्टमी के आइडियली यूज होते हैं ना, ये नाम देख लो, जेपलिन क्लैंप उनका नाम है। ठीक है। जेपलिन क्लैंप और मायो सीजर्स आप यूज करते हैं काटने के लिए। जब ब्लैडर रिफ्लेक्ट हो गया, पिक द पेरिटोनियम। अच्छा, उसने अब लिगामेंट लगा लिए, अब वो कह रहे हैं टीयर पाउच खोल लें विद अ टिश्यू फोर्सेप्स दैट इज नॉन ट्रोमेटिक टूथ फोर्सेप्स। अच्छा, एक जो हम टूथ फोर्सेप्स यूज करते हैं ना, वो दो किस्म के जी टूथ हाँ जी। फोर्सेप्स होते हैं। ये हमेशा अपना अब कॉन्सेप्ट अब अपना क्लियर कर लो, अगर आज से पहले गौर नहीं किया तो। ठीक है। जो एक दांत वाला होता है ना, वो टूथ फोर्सेप्स ट्रोमेटिक होता है। ये वाला जो है ना, ये देखो, ये नजर आ रहा है, ये ट्रोमेटिक टिश्यू फोर्सेप्स होता है। टूथ फोर्सेप्स होता है लेकिन ट्रोमेटिक होता है। ये जो है ना, जो इस तरह के जिसके बहुत सारे दांत होते हैं, होता है ये भी टूथ ही है, लेकिन ये नॉन ट्रोमेटिक होता है। ये समझ आ गई आपको? फातिमा, सिद्रा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। मैडम उसकी टूट फोर्सेप की वो नहीं आई, पिक नहीं आई, वैसे एक समझ नहीं आ आई? गई। अच्छा, एक मिनट। जी जी मैडम। ये स्लाइडें चल रही है ना जी आपकी मैडम, स्क्रीन पे? आ रही है, थोड़ी कट के आ रही है लेकिन आ रही है। अब आ गई है। ये आपका नॉन ट्रोमेटिक टूथ फोर्सेप है और ये ट्रोमेटिक जी टूथ मैडम, अब फोर्सेप है। नजर आ रही है। जी जी, जिसमें अब आ एक टीथ, ये देखो ना, एक दांत है, एक टूथ है जिसका, ये जो है ना, ये आपका ट्रोमेटिक होता है। ये देखो ना, ये ऐसे होता है टूथ फोर्सेप, अगर सामने से देखो ना, ये ऐसा होता है। लेकिन ये जिसमें मल्टीपल टीथ है ना, ये वाला नॉन ट्रोमेटिक होता है, और इसी से आपने अपनी पेरिटोनियम्स को होल्ड करना है। नॉन ट्रोमेटिक। ठीक है। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से शुरू हो रही हैं। आपने क्या करना है जब ये खोल, फातिमा, एम आई ऑडिबल? हेलो। जी जी मैडम, आपकी आ रही है आवाज अब। स्क्रीन भी नजर आ रही है? जी मैडम। जी मैडम, अब आ गई। जी जी, ठीक हो गया। ओके। सो हम यहाँ पे थे कि हम लगा रहे थे क्या, पेडिकल्स। ठीक है। तो हमने एंटीरियर पाउच ओपन कर ली। जब एंटीरियर पाउच ओपन हो गई है, उसमें उन्होंने कहा कि पहले आपने पीछे से, अगर आपको पहले सामने सही नजर नहीं आ रही,
तो फिर आपने पीछे से फिंगर को इंसर्ट करके फ्रॉम द पोस्टीरियर पाउच यू कैन आइडेंटिफाई कि ये एंटीरियर पाउच की यूट्रोवेसाइकल पेरिटोनियम है, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे नजर आ रही है सामने, तो आपने टूथ फोर्सेप्स उसको एलिवेट करना है, 2 आर्टरीज के दरमियान में उसको कट कर देना है, ठीक है। जब वो खुल जाएगी तो आपने क्या करना है कि उसके अंदर भी डिटेक्टर डाल के उसको पीछे ले जाना है, एलिवेट कर देना है ब्लैडर को, जी ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सेकंड पेडिकल लगाना है यूट्राइन का। जैसे आपने कहा कि हम उसको जस्ट अबव द प्रीवियस पेडिकल लगाना है, एडिक्वेट मोबिलाइजेशन। बात अब जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है ठीक कि जी मैडम आपने इसको एक तो डबल लाइगेट करना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात है वेस्कुलर पेडिकल में। दूसरा, इसको ट्रांसफिक्स नहीं करना जो आपने बताया। तीसरा, एंटीरियर और ठीक पोस्टीरियर फोल्ड की जो पेरिटोनियम है वो इसके अंदर इंक्लूड करनी है लाजमी, बिकॉज दिस विल प्रोवाइड बेटर हीमोस्टेसिस, ठीक है। जो छोटी छोटी वेसल पेरिटोनियम के अंदर है वो इसके साथ ही लाइगेट हो जाएंगी, ठीक हो गया। देन जब आपके दो क्लैंप लग गए, देन यू आर गोइंग टू डिलीवर द फंडस थ्रू द जी वजाइना, मैडम ठीक है। और दिस विल बी, आपको लिगामेंट्स के नाम नहीं आ रहे थे, यहाँ से देख लो। अगर आपने ओवरीज जी छोड़नी है तो ट्यूबो ओवेरियन लगेगा, ट्यूब और जी ओवरी के दरमियान में। अगर आपने ओवरीज रिमूव करनी है तो इन्फेंडिबुलो पेल्विक, आईपी, ये लगेगा, ठीक है। ये देखो लिखा भाई, अगर आईपीएल है, इफ द ओवरीज टू बी रिमूव्ड, और अगर नहीं तो फिर आपने ट्यूबो जी ओवेरियन मैडम वो लिगामेंट। काफी टाइम जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब हम याद कर लेंगे। असल में ये मिलके पढ़ने का जी फायदा मैडम ये होता है, चीजें याद हो जाती हैं। इनफेंटिबल जी। देन वी कैन जी यूज 2 लॉन्ग स्ट्रेट क्लैम्प्स ऑन ईच मैडम साइड। जी मैडम ये ट्यूब ओवेरियन है ये मैडम जी, ट्यूबो ओवेरियन है। मैडम अगर आपने ओवरी ये नहीं निकालनी तो ट्यूबो ओवेरियन है। ट्यूब ओवेरियन है या यूट्रो ओवेरियन है नहीं नहीं, मैंने ट्यूबो, कुछ जगह पे अच्छा ट्यूब ओवेरियन है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने इसको लंबे धागे के साथ क्लिप कर देना है ड्रेप्स के साथ, ठीक है। एंड दिस विल अलाउ द रिमूवल ऑफ द यूट्रस। ठीक और फिर जब ये यूट्रस रिमूव हो गई, अगर आपने ओवरीज अंदर छोड़ दिए तो उनको पेल्पेट लाजमी करना है और हीमोस्टेसिस चेक करना है, ठीक हो गया। अच्छा मैंने तो आखिरी लिगामेंट भी कर लिया था जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रही थी कि पेरिटोनियल क्लोजर रूटीन में नहीं अब करना, नहीं उनको कराना है। ट्राई करना था जी 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 जी, हमने मैकॉल कल्डोप्लास्टी करनी है अब इसके बाद, लिगामेंट ठीक है। क्लैम्प जी, वो कह रहे हैं कि जी जी, वो कह रहे हैं कि आपने मैकॉल कल्डोप्लास्टी लाजमी करनी है, ठीक है। उसमें आप ये करते हैं कि ये नीचे वॉल्ट रह गया ना वजाइना में, वॉल्ट से आपने एक एंगल से सूचर गुजारा। इधर आपके यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है राइट और लेफ्ट, एक साइड के यूट्रोसैक्रल से गुजारा, पैराइटल पेरिटोनियम से गुजारा, दूसरी साइड के यूट्रोसैक्रल से गुजारा और यहाँ वॉल्ट से गुजारा, ठीक है। तो आपने मैकॉल जी कल्डोप्लास्टी लाजमी जी करनी मैडम है, क्योंकि जैसे फिर आप वॉल्ट क्लोज करेंगे ना तो ये एलिवेट हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो पॉसिबल रिस्क ऑफ जो पोस्ट हिस्टेक्टमी वॉल्ट प्रोलैप्स है, एंटेरोसील है, क्योंकि आपकी पेरिटोनियम भी बंद हो जाएगी एज हाई एज पॉसिबल। तो फिर क्या होगा कि एंटेरोसील और वॉल्ट प्रोलैप्स दोनों का रिस्क कम हो जाएगा। जब आप मैक कॉल कर लेंगे तो फिर आपने हीमोस्टेसिस को देख लेना है, वॉल्ट को क्लोज कर लेना है, कॉन्टिन्यूस लॉग्ड या इंटरप्टेड सूचर्स, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसे आपकी मर्जी है। स्टार्ट विद द एंगल्स, और एंगल्स पे जो है ना यूट्रोसैक्रल्स ये बंद ही जाएंगे जब आप मैक कॉल करेंगे, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर या आफ्टर जब आपने हिस्टेक्टमी कर लिया, आप वॉल्ट को खींचते अगर वो इंट्रोइटस तक आ गया है, इफ यू पुल, अगर पुल नहीं किया और खुद भी आया हुआ है, स्पॉन्टेनियस भी आया हुआ है, और इफ यू आर पुलिंग और वॉल्ट इंट्रोइटस पे है, तो उसकी आपने सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन लाजमी करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कैथेटर डालना है, इनिशियल यूरिन को चेक भी कर लेना है। और फातिमा 48 आवर्स के लिए पैकिंग नहीं रखनी, 24 घंटे के लिए रखनी है। और आपने एक कंडीशन जी लगाई कि अगर मुझे शक है हीमोस्टेसिस या ब्लीडिंग हो रही है, ये नहीं करना, ठीक है। हर बंदे को पैक करना है 24 घंटे के लिए, ठीक है। क्योंकि छोटी ठीक छोटी जो वेनस ठीक वेनस है ब्लीडिंग है ना, ये जी मैडम पीएच में, ये प्रेशर से ही बंद होती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं आई विल बी यूजिंग वाइक्रल और पीडीएस, कैली स्टिच इज नॉट रूटीनली यूज्ड अगर पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस नहीं है। ब्रॉड लिगामेंट पेडिकल्स को भी हम आपस में टाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। आगे एंटीरियर रिपेयर के जो मैं आपको बता रही थी, सबसे पहले एंटीरियर रिपेयर जब आप बता रहे होगे ना, प्यूबो सर्वाइकल फेशिया का नाम लाजमी लेना है, ठीक है। वॉल्ट क्लोजर से पहले आप उनको बताना है कि वो जो हमने टीयर ड्रॉप इंसिजन ऐसे दिया था ना, तो फिर यहाँ से अब मैं इधर से डायसेक्शन शुरू करूंगी और वजाइनल जो स्किन है उसको मैं ब्लैडर से सेपरेट कर दूंगी, ठीक है।
उसके बाद मैं प्यूबस सर्वाइकल फेशिया को आइडेंटिफाई करूंगी एट द लैटरल एजेस, यहां पे मिलेगा, ऑफ द डाइसेक्टेड एंटीरियर वजाइनल वॉल। आई विल टेक 3 to 4 sutures टू करेक्ट द आ इंटरनेट रही है। ज्यादा तंग कर दी है। अच्छा जी, अब ये जो मैंने यहाँ तक समझाया था आपको समझ आ गया है कि हमने वॉल्ड क्लोजर से पहले, ठीक है, जी हमने मैम। बैकवॉल अटैच कर दिया, फिर हमने ये किया कि जो टीयर ड्रॉप इंसिजन दिया था वहां से वजाइनल वॉल को हम डायसेक्ट करेंगे अवे फ्रॉम द ब्लैडर। वी विल आइडेंटिफाई द प्यूबोसर्वाइकल फेशिया जी and then we'll take 3 to 4 sutures to repair the defect and then incise the redundant vaginal skin and close the vaginal skin। यहाँ से क्लोज करके नीचे आएंगे तो फिर यहाँ से वॉल्ट भी कर लेंगे, ठीक है, तो फिर ये ऐसे बन जाएगा। जी मैम। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये ठीक। जब आपने एंटीरियर रिपेयर के लिए ओपन की हुई है तो जगह ऐसे होती है। ये आपने प्यूबस सर्वाइकल फेशिया को आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ पे ये एडहेजन थी थोड़ी सी, ये आपने यहाँ से रिलीज करके इसको सेंटर में अब ये देख लिया कि ये आ गया प्यूबो सर्वाइकल फेशिया, क्योंकि सिस्टोसील बनती ही डैमेज टू प्यूबो सर्वाइकल फेशिया की वजह से है। ठीक है, ये आपने बताना है, जी क्योंकि उनको बताना है कि सिस्टोसील इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द प्यूबस सर्वाइकल फेशिया, फर्स्ट आई विल आइडेंटिफाई दैट एंड ट्राई टू रिपेयर द डिफेक्ट। ठीक है, आई विल रिपेयर द डिफेक्ट। अब ये देखो स्टिचिंग शुरू हो गई है इसकी, स्टिचिंग के बाद ये ऐसा नजर आएगा, क्योंकि अब ये फेशिया आ गया ना यहाँ पे। फिर जब इसके बाद जब आप रिडंडेंट स्किन यहाँ से निकाल लेंगे तो ये फिर इस तरह की लगेगी। ऊपर ये बिलो द 1 to 2 सेंटीमीटर बिलो द यूरिथ्रल मेटस आपने एक एलएस लगाना होता है, और फिर आपने यहाँ से रिपेयर कर देना होता है। फिर जब आप नीचे आओगे तो फिर यहाँ से वॉल्ट भी लग जाएगा। ठीक हो गया। ठीक। जी ओके, मैडम। एडिशनल क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ सकते हैं कि क्या टेक्निक है जो फैसिलिटेट करती है इनिशियल डाइसेक्शन, वो हमने कर ली थी कि लिग्नोकेन और डाइल्यूटेड एड्रेनालिन का जो सोल्यूशन है हम उसको मिक्स करके तो वो ब्लड लॉस को कम भी करती है और डाइसेक्शन को फैसिलिटेट भी करती है। ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कैसे करेंगे आप, तो वो हमने बता दिया। अगर ये तब पूछेंगे अगर आपने नहीं एक्सप्लेन किया, तो अगर आप हाइड्रोसेक्सेशन आपने कर ली है पहले तो फिर जरूरी नहीं है कि वो आपसे पूछे। ठीक है, फिर वो जरा क्यों पूछेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग द ब्लैडर सुपीरियरली। वो कहते हैं इट लोअर्स द रिस्क ऑफ ब्लैडर एंड यूरिटेरिक इंजरी। ठीक है। व्हाट इफ द करेक्ट इंसिजन साइट नॉट इनिशियली एविडेंट। तो जैसे ये हमने कहा था कि इंसिजन साइट कौन सी होगी हमारी, कि जब हमने ब्लैडर साउंड डाला या ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए मेटल कैथेटर डाला, तो फिर हमने क्या किया, वहां से लोअर लिमिट देख ली, तो उससे 2 to 3 सेंटीमीटर नीचे हमने इंसिजन दिया। वो कहते हैं अगर इनिशियली नहीं है तो यू विल गिव इंसिजन डिस्टली एज पॉसिबल टू अवॉइड द ब्लैडर इंजरी। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जी हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द यूट्रोवेसाइकल पेरिटोनियल फोल्ड। यू पुल द सर्विक्स डाउनवर्ड्स बाय वाल्जाला एंड ब्लैडर रिट्रैक्टेड बाय लैंडन, द फोल्ड विल अपीयर एज अ वाइटिश ट्रांसवर्स फोल्ड। यानी कि ये सर्विक्स है, जब मैंने यहाँ से कर लिया सर्कमफरेंशियल इंसिजन देके, यहाँ से डायसेक्शन भी कर ली, तो ब्लैडर इधर आ गया। वो कहते हैं ब्लैडर और वजाइना के दरमियान में यहाँ पे मुझे वाइटिश ट्रांसवर्स फोल्ड नजर आएगा, जो मुझे बताएगा कि यूट्रोवेसाइकल पेरिटोनियल फोल्ड में मैं पहुंच गई हूँ। ठीक हो गया। नहीं तो दूसरी वो ये है कि आप पोस्टीरियर कफ से आप फिंगर आगे ला के उसको देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कल्डी सैक को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वो कहते हैं सर्विक्स को हम ऊपर पुल करेंगे जब, तो टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स से जब हम रिट्रैक्ट करेंगे पोस्टीरियर वजाइनल कफ को, तो फिर पेरिटोनियम हमें अंडर टेंशन वहां पे नजर आ जाती है। ठीक हो गया। हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो एक स्ट्रैंड ऑफ पेरिटोनियम ना ऐसे नजर आता है जब आप पीछे खींचते हैं उसको। ठीक हो गया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि व्हाई वी इंक्लूड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोल्ड्स ऑफ द ओपन पेरिटोनियम इनटू द यूट्राइन पेडिकल। वो कहते हैं टू इंश्योर ऑल द ब्रांचेस ऑफ द यूट्राइन आर्टरी आर सिक्योर्ड टू सिक्योर द हीमोस्टेसिस। ठीक हो गया। अच्छा जी, ठीक पहले है। वो कहते हैं आपने वीएच करनी है या एंटीरियर रिपेयर करोगे, तो इसका जवाब है कि पहले हमेशा मैं वीएच करूंगी, बिकॉज इट विल गिव मी मोर रूम एंड द नीड फॉर पोस्टीरियर रिपेयर मे चेंज आफ्टर फिनिशिंग वीएच। हो सकता है पहले मुझे ना पता चल रहा हो, लेकिन जब मैं रिपेयर कर वीएच कर लूं तो मुझे शायद नजर आ जाए कि पोस्टीरियर रिपेयर की भी जरूरत है, तो उसके लिए फिर पोस्टीरियर रिपेयर हम पहले करेंगे, एंटीरियर सबसे एंड पे करेंगे। अच्छा, पैक क्यों करते हैं, वो कहते हैं हिमोस्टेसिस के लिए, बिकॉज ऑल्सो इट लोअर्स द रिस्क ऑफ वजाइनल एडिशंस। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सूचर्स फॉर सपोर्ट। वो कहते हैं कि एक तो ये जो हमने मैकॉल लगाया, अच्छा, फॉर सपोर्ट कहते हैं इनसफिशिएंट एविडेंस है टू रिकमेंड द परमानेंट सूचर मटेरियल्स ओवर डिलेड एब्जॉर्बेबल सूचर्स, दैट इज 0 पीडीएस फॉर वॉल्ड सपोर्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फेलियर। तो परमानेंट सूचर्स में भी एसोसिएटेड विद हाई सूचर एक्सपोजर रेट इरोजंस, तो इसलिए वो कहते हैं कि जो परमानेंट सूचर्स हैं वो हम सपोर्ट के लिए नहीं लगाते। जो वॉल्ड सपोर्ट आपने की है ना, मैकॉल आपने की है, तो वो कहते हैं उसके लिए आपने परमानेंट सूचर्स नहीं लगाने। ठीक है, डिलेड एब्जॉर्बेबल सूचर्स लगाने हैं। ठीक है। अच्छा जी, जी मैम। आगे वो कह रहे हैं कि जो आपका लैंडन रिट्रैक्टर है, हम उसको क्यों कहते हैं कि उसको ज्यादा पुश नहीं करना, सेम्स या लैंडन जो भी रिट्रैक्टर आपने डाला हुआ है कि बहुत ज्यादा पुश नहीं करना। ठीक है,
क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा अंदर पुश करेंगे तो जो ऑपरेटिव साइट है इट विल गो फर्दर, सर्जन से ऑपरेटिव साइट भी दूर चली जाएगी। इसलिए सिर्फ उनको थोड़ा सा जहाँ टिश्यू को उनको कहना है जेंटली होल्ड करके सिर्फ वो टिश्यू रिट्रैक्ट करें जो हमें वहां से साइट से विजन के लिए जरूरी है हटाना। ठीक है। जी मैडम। अच्छा जी, ये हो गया। अगर फाइब्रॉइड है तो मोर्सलेशन कर ले, उसकी ट्यूब एंड ओवरी रिमूव करनी है तो फिर आपने राउंड लिगामेंट को पहले सेपरेट करना है। ठीक है। जब आप इन्फेंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट लगा रहे हैं, यानी अगर आपने ओवरीज रिमूव करनी है तो राउंड लिगामेंट को कह रहे हैं सेपरेटली अलग से लगा लें ताकि फिर ईज हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी। जी मैडम। अगर वो कहते हैं पोस्टीरियर पेरिटोनियम इजीली आइडेंटिफाई नहीं होगी तो क्या करोगे? तो कहते हैं फिर एंटीरियर एंट्री करेंगे और वहां से फिंगर हुक करेंगे। जैसे हमने पोस्टीरियर से एंटीरियर फिंगर की थी ना हुक, इसी तरह हम एंटीरियर से पोस्टीरियर करेंगे अगर हमें नहीं पता चल रही तो। ठीक है। वो कह रहे हैं व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द यूट्राइन पेडिकल। यूट्राइन आर्टरी और वेन होती है यूट्राइन पेडिकल के अंदर और उसकी छोटी ब्रांचेस होती हैं जब हम पेरिटोनियम इंक्लूड करेंगे। ब्रॉड लिगामेंट के क्या क्या, पेडिकल के क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं, उसमें राउंड लिगामेंट होता है, ओवेरियन लिगामेंट होता है, फ्लोपियन ट्यूब होती है। ठीक है। किस स्टेप पे आप ओवरीज को पेल्पेट कर सकते हैं, ये भी हमने किया था जब हमने यूट्रस रिमूव कर ली थी तो फिर हमने ओवरीज को पेल्पेट किया था और हीमोस्टेसिस को चेक किया था। ठीक है। हाउ कैन यू सपोर्ट द वॉल्ट? तो बाय अटैचिंग और अप्रोक्सीमेटिंग द यूट्रोसैक्रल पेडिकल्स अबव और बिलो द वजाइनल स्किन। ठीक है। अच्छा जी। एनी प्रिकॉशंस वाइल टेकिंग आउट डेड वजाइनल स्किन? हाँ जी, आपने ये ध्यान करना होता है कि बहुत शॉर्ट नहीं हो जाए वजाइना, बहुत ज्यादा स्किन रिमूव नहीं करनी, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा स्किन आप रिमूव करेंगे तो डिस्परूनिया होगा अगर पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव है तो। ठीक है। आप कफ को क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे। वो कहते हैं कि क्लोजर मोर सिक्योर है, हीमोस्टेसिस उसमें सही रहता है, लेस रिस्क ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन एंड असेंडिंग इन्फेक्शन और ई विसरेशन ऑफ द विसरा। अगर आप ओपन छोड़ भी देंगे तो भी नेचुरल ड्रेनेज होता रहेगा, बट पॉसिबल है रिस्क ऑफ वजाइनल हीमाटोमा एंड एब्सेस। ठीक है। वीएच के साथ आप क्या क्या प्रोसीजर कर सकते हैं? वो कहते हैं पेल्विक फ्लोर रिपेयर कर सकते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर कर सकते हैं, डी इन्फिब्रिलेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर, ये वही बातें हैं वैसे, ये आप पढ़ लेना। ठीक है। थोड़ा सा ही रह गया, ये एक रह गया, इसमें भी बस प्रैक्टिकल टिप्स से लिखी हुई है, बाकी और कोई खास बात नहीं लिखी हुई। सरकम को यही बता रहे हैं कि आप सरकमफेरेंशियल भी दे सकते हैं, टीयर ड्रॉप भी दे सकते हैं, इंसिजन जो आपको चाहिए हो वो आप दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये सीजर्स देख लो अपनी, क्योंकि वहाँ इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं। ये आपकी मायो सीजर है यार, नजर आ रहा है बेटे आपको स्कैन? ये मेरी स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी मैडम। जी जी जी। मैडम नजर आ रही हैं। सॉरी, मैं परेशान हो गई थी कि फिर गायब हो गया, नहीं कनेक्शन मैडम। चला गया। अच्छा जी, ये आपकी मायो सीजर है, इसको देख लो जरा। ठीक है। ये जो कर्व्ड आपकी सीजर्स होती हैं ये मायो सीजर्स हैं। ये मैकिनडोई सीजर है जो पतली लंबी कर्व्ड होती है। ठीक है। मैकिनडोई ये शार्प डाइसेक्शन के लिए यूज होती है। ये मेटल कैथेटर है आपका। सिम्स रिट्रैक्टर आ गया, वॉल्जेलम आ गया, टेनाक्युलम आ गया, लैंडन आ गया, लैंडन को देख लो। ठीक है। और ये लैंडन ही यूज हुआ हुआ है, ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है उसकी। ठीक है। ये देखो ये लैंडन रिट्रैक्टर कैसे उन्होंने यूज किया ब्लैडर को रिट्रैक्ट करने के लिए, ये देख रहे हो? जी मैडम। आगे देखो, अब ये टूथ फोर्सेप मैंने पहले दिखा दिए थे आपको। अब ये देखो ना, ये नॉन ट्रोमेटिक टूथ फोर्सेप से कैसे ये वाइटिश ट्रांसवर्स टिश्यू उनको नजर आ गया, अब ये एंटीरियर पाउच खोलने लगे। ठीक हो गया। जी मैडम। ये लोन स्टार रिट्रैक्टर है, लेकिन आप रहने दो, पाकिस्तान में ये नहीं किसी को पता। ठीक है। ये देखो, पहले आपने लाइगेट किया, ट्रांसफिक्स कैसे किया, ये टेक्निक आपको आनी चाहिए। पहले जो भी ये है ना, इसके सेंटर से गुजारना है धागा और फिर इंसर्कल करके, सेंटर से जो गुजारा वो नॉट ली और फिर इंसर्कल करके पेडिकल को फिर नॉट ली। ठीक है। तो ऐसे आपने करने हैं ये सारे। लाइगेशन एंड ट्रांसफिक्सेशन को देख लें। उसके बाद ये इन्फिल्ट्रेशन हमने देख ली थी, फिर हमने ये देखा था कि ये जो इंसिजन दिया था ये हमने देख लिया था पहले। अब पोस्टीरियर पाउच ओपन हो गई है, फिर उसने यूट्रोसैक्रल और ट्रांसवर्स सर्वाइकल को लगा लिया, फिर उसने एंटीरियर पाउच ओपन कर ली, फिर उसे यूट्राइन को लगा लिया, फिर ये यूट्रस डिलीवर हो गई है, फिर हमने ब्रॉड लिगामेंट का क्लैंप लगा लिया, इनफंडिबुलर पेल्विक या ट्यूबो वेरिएंट जो आपको, अब ये देखो, ये देख रही हो फातिमा? जी मैडम। ये नजर आ गया? जी जी मैडम। ठीक है। टी लिंडे की पिक्चर है। अच्छा जी, आगे। अब ये जब सारा हो गया तो आपका ये ऐसे नजर आएगा काफ सारा। ठीक है। ये जब आप सारे उनको लाइगेट कर देंगे आपस में तो एंड पे ये ऐसा नजर आएगा। अब ये देखो जो मैं आपको बता रही थी, इंटेरोसील प्रोफाइल एक्सिस। ठीक है। ये लैटरल वेजाइनल कफ से गुजारा हमने, यूट्रोसैक्रल से गुजारा, फिर ये पोस्टीरियर पेरिटोनियम से ये गुजारा पीछे से, और यहाँ से गुजारा। ठीक है। आगे नहीं जाना, जी सॉरी, ये मैडम। इधर से आपने गुजारा, इधर से गुजार के इधर से गुजारा, और फिर ये तो वैसे जब पूरा बंद होगा तो फिर बंद हो ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये उन्होंने जो यहाँ टेक्निक दिखाई हुई है ना, बेसिकली ये उस सर्जन की टेक्निक ही है
कि वो सर्कमफरेंशियल बंद कर रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है सर्जन प्रेफर्स द सर्कमफरेंशियल रनिंग सूचर लीविंग द वॉल्ट ओपन एट द लेवल ऑफ यूट्रोसैक्रल कार्डिनल सूचर इनकॉर्पोरेट लैटरल एजेस ऑफ वॉल्ट एंड द पोस्टीरियर पेरिटोनियम। ठीक है, ये सर्जिकल टेक्निक डिफरेंट है, हम वॉल्ट बंद करते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम सर्जन है जो जी वॉल्ट मैडम, को छोड़ रहे हैं। ठीक हो गया, सो दैट्स मैडम ऑल फॉर वीएच। लेप्रोस्कोपी में छोड़ रहे हैं। जी जी, मैडम लेप्रोस्कोपी में अक्सर, मैडम अक्सर लेप्रोस्कोपी में वो छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं लेप्रोस्कोपी में? मैडम जब सर्जन करते हैं ना वो छोड़ देते हैं, हम गायनेकोलॉजिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट तो भी छोड़ करते हैं। देती हैं, छोड़ देती हैं, क्यों अच्छा, छोड़ते हैं? मैडम वो कहते हैं कि हीमोटोमा ना बने अंदर, नहीं लेकिन ना उससे नहीं, इसका असल वजह कुछ और है, क्यों छोड़ते हैं बताओ? ये नहीं, मैं तो ये समझती थी कि वो हीमोटोमा ना बने, टाइम नहीं ज्यादा ना कंज्यूम। नहीं, देखो हमने बहुत ज्यादा चीजें कर ली हैं, लेकिन उसमें ये है जी कि लेप्रोस्कोपी बहुत लोगों ने सीख ली है, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप करते हैं ना लेप्रोस्कोपी, तो उसमें जो जी इंटर कॉर्पोरियल सूचरिंग है ना, यानी थ्रू द हम्म, लेप्रोस्कोप सूचरिंग, वो जी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, लेवल 4 की सर्जरी होती है, तो सब लोग वो नहीं कर सकते।